मन रे मत कत जाने जियो मन मत कत जाने मत कत जाने जियो बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे कटमानी जियो मन रे मत कत जाने जियो मन रे मत कत जाने बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे कर्ममृत कटमानी जियो मन रे मत कत जाने जियो जिस जल निधि कारण तुम जग आए जिस जल निधि कारण तुम जग आए सो मृत गुर पाई जियो छोड़ो वेश पेख चतुराई छोड़ो वेश पेख चतुराई दुविधाए फल नाही जियो दुविधाए फल नाही जियो मन रे
पछताई जियो कर्म गुण पछताई जियो सर अपसर की सार ना जाने सर अपसर की सार ना जाने फिर कीच बुढ़ाई जियो फिर कीच बुढ़ाई जियो मन रे मत कत जानी जियो बाहर टूटत मौत दुख पावे बाहर टूटत मौत दुख पावे काल अमृत खट माही जियो मन रे मत कत जानी जियो अंतर मैल लोभ को छूटे अंतर मैल लोभ को छूटे बाहर नाओ काई जियो बाहर नाओ काई जियो निर्मल नाम जपो सद्गुर मुख निर्मल नाम जपो सद्गुर मुख अंतर की गत ठाही जियो अंतर की गत ठाही जियो मन रे मत कत जानी जियो बाहर टूटत मौत दुख पावे काल अमृत खट माही जियो मन रे मत कत जानी जियो पर हर लोभ निंदा उड़ त्यागो पर हर लोभ निंदा उड़ त्यागो सच गुरवचनी फल पाई जियो सच गुरवचनी फल पाई जियो ज्यों पावे त्यों राखो हर लियो ज्यों पावे त्यों राखो हर जन
ਕਤ ਜਾਣੀ ਜੀਓ ਮਨ ਮਤ ਕਤ ਜਾਣੀ ਜੀਓ ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਪਾਵੈ ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਪਾਵੈ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਟ ਮਾਹੀ ਜੀਓ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਟ ਮਾਹੀ ਜੀਓ ਮਨ ਰੇ ਮਤ ਕਤ ਜਾਣੀ ਜੀਓ ਮਨ ਰੇ ਮਨ ਰੇ ਮਤ ਕਤ ਜਾਣੀ ਮਤ ਕਤ ਜਾਣੀ ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਪਾਵੈ ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਪਾਵੈ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਟ ਮਾਹੀ ਜੀਓ ਰਹਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੌਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 598 ਅੰਗ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਹਾਉ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰਹਾਉ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਰਹਾਉ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਹਾਉ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਾਉ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਵਾਕ ਲੈਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਹਾਉ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵਾਕ ਲੈਣ ਵੇਲੇ। ਜੇਕਰ ਰਹਾਉ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ 2-2 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਰਹਾਉ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਾਉ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ
ਉਹ ਟੂਲ ਹੈ ਬਣਤਰ ਦਾ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਓਰੈਸਟ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਾਵਟ ਤੋਂ ਪਿਓਰੈਸਟ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਉਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਫਸਟ ਐਂਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਖਰਾ ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹੀਲ ਹੁਜਤ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਤਰਕ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਉਤਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਦ ਕਿ ਖਰਾ ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ। ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਰੱਬ ਜੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰੱਬ ਜੀ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਮਾਨ ਆਕਾਸ਼ 'ਤੇ, 7ਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੋ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ, ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੱਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਠੜੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਰਥ ਨੇ। ਇਹ ਜੱਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਠੜੀ। ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ये फिल्मा तो प्रचलित हो गया, वो नीली छतरी वाले, वो ऊपर वाले, नीचे जुल्म हो रहा है कब आएगा। यही भुलेखा गुरबाणी कटती है कि वो आएगा या आया होया है, वो है ही है। वो आज सच जुगा सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वो तो शुरू तो है ही है। फिर कदों जुल्म होएगा तो आएगा। वो मौजूद ही है, तू महसूस नहीं करता। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਈ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਸਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਮੱਸਿਆ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਥੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਸ਼ਕਾਰਾ ਪਿਆ, ਰੱਬ ਜੀ ਆਏ ਔਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁੱਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਭੁਲੇਖੇ ਲਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਤੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਤਾ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਈਏ, वहाँ पर तो तब जाएं, वहाँ तो जाइए जो यहाँ ना होए। इत्थे हन फिर कित्थे जा रहे हैं। आपे भुलेखा लथदा जाएगा। तथा कथित 100 काट तीरथ ते जाना नहीं पएगा।
और जे भटकना मुक गई तो रब जी रियलाइज होने भी शुरू हो जाएंगे। मन टिक गया, शब्द दा रहाओ। मन रे अपने मन नूं कह रहे हैं, किसी होर दे मन नूं नहीं कह रहे हैं। ये गल असीं याद रखनी है। असीं सारे कही जा रहे हैं कोई आवे नौजवानों नूं सीधे राह पाए। असीं माता पिता हाँ, हमेशा टेंशन है बच्चे सीधे राह किवें पै जाण। वैसे तो वड्डे सीधे राह पए नहीं हैं, उन्होंने भुलेखा है कि वी आर ऑलरेडी वड्डे एंड वी आर राइट। वड्डे होना राइट होना नहीं होता। राइट राइट होता है, जरूरी नहीं है कि वड्डा ही राइट होता है। असी क्योंकि माता पिता हाँ, असी राइट ही हाँ। वैसे साडा बच्चा जदों खंडे की पौल छक लैंदा है, वो कहता पापा मैं सादा विआह करना है, पर पापा कहता मैं वड्डा हाँ। मैं पिछले 50 सालों तो लोगों दी पार्टियां अटेंड कर रहा, अज मेरे पुत्र का विआह है, लोग पूछणगे तुसीं शराब नहीं वरताई, मैं जरूर वरतानी है। वैसे पापा मनदा है असी वड्डे हाँ, असी ठीक हाँ। इहदा मतलब असी दूजियां नूं नहीं समझाना। सारी बाणी फर्स्ट परसन की लैंग्वेज है। मनु कह रहे मन मेरे सतगुर के पाने चल, मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ करे। मेरे मन की गल की है। अपने मन नूं समझाया जा रहा, मन बाहर जाता है ते आस्ता आस्ता तन नूं भी लै ही जाता है। मन रे थिर रहो, टिक जा, मत कत जाई जियो। असी ठानी हुई है मैं इत्थे रहन देना चाहता ही नहीं हाँ। तुसीं कई जगह देखिया, अज इत्थे नहीं है वैसे, पर आम तौर पर मैं देखदा गुरुद्वारियां विच पालकी उत्ते और पिछे इत्थे घड़ियां और कुछ होर भी इस तरीके दी जग-बुझ दी लाइटां लगाईयां जांदियां। ये जग-बुझ दी लाइट मैनूं टिकन थोड़ी ना देगी। जग-बुझ दी लाइटां जिथे नाच गाने होंदे ने उत्थे लाइयां जांदियां ताकि तुसीं टिक ना जाना। टिक गए तो तुसीं इस डांस पार्टी तो चले ही जाओगे, तुहानूं टिकन नहीं देना है। एक बार मैं सांझ की सी, कार के पिछे एक इंज बीम बनी होंगी है, इस बीम ते लाइट जगबुझ 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 जिस तरह रैड कलर की लाइट वो जगती है। तुसीं उन्होंने देखो, तुसीं अपसैट हो जाओगे, टिक नहीं सकोगे। असी ठानी हुई है, असी टिकना नहीं चाहते हाँ। वैसे लोग पुछते हैं वीर जी जदों मैं पाठ करता हाँ करती हाँ मन टिकता नहीं, गुटका हथों ढह पैंदा है जी, नींद आ जाती है। मन नूं किस तरह टिकाइए? मन नूं पकड़ के टिकाना नहीं है। मन जेड़े जेड़े कारणा करके इथों बाहर जाता है वो कारण समझने क्यों जाता है। मैं हमेशा दूजियां दे अवगुण देखता रहता, एक कारण है। मैं हमेशा दूजियां दे सुखां नूं देख के सड़दा रहता हाँ, एक भी कारण है। दूजे कामयाब हो गए, मैं कामयाब नहीं होया, एक भी कारण है। दूजियां ने किहड़े कपड़े ब्रांड नेम दे पाए ने, मेरे को नहीं हैं, मैं एक कंपीटीशन दी रेस विच भी दुखी होंदा हाँ। साडे घरां दीयां मावां जदों किट्टी ते जांदियां उन्होंने ये भी हुंदा, लोग पुछणगे तेरे बच्चे दे कितने नंबर आए। इस करके वो बच्चे की पूरी वाट लगाती है कि तेरे भी 98% क्यों नहीं आए। सारिया सहेलियां की कहनगियां। इस तरह आस्ता 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 ये कारण ने, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,
टीवी देखता रहता है, दोस्तों नाल मस्त रहता है, राती लेट आता है, घर का ख्याल नहीं करता है। देखो दूजिया का बच्चा, तू देखो कितना कामयाब है, कितने लखा कमा के लिया है, तू तो कई घर ही बैठ गया है, तू तो ज्ञानी बन गया है, तू तो पाठ करता रहता है। लोगों के बच्चे इतना घूम फिर के सब कुछ कदे कदाई शराब पार्टी ते भी बैठ के बिजनेस ले आते ने, तू बिल्कुल ही शरीफ हो गया। ये सारे कंपैरिजन असी करते हैं। मन बाहर जा रहा है क्योंकि मन दूजियां वाल देख रहा है। जो दूजियां वाल देखे ना मन, तब मानो मन अपने घर तो बाहर चला गया और मर गया। उस अवस्था नूं कहते ने बार पराए बैसना साईं मुझे न दे। मुझको दूसरों के दरवाजे पे बैठना पसंद नहीं। बार दरवाजा, डोर, पराए बैसना, पराए दरवाजे ते बार पराए बैसना साईं मुझे न दे। जे तू एवें रखसी जियो शरीरों ले, फिर ते मोए बराबर है, फिर जीण का फायदा ही नहीं। ते असी ते ठानी हुई है, मैं अपने घर रहना ही नहीं, मैं अपने अंदर दे निज घर अंदर रहना ही नहीं। मैं तो दूजिया दे पुणना है, किस दे घर कौन आता है, किना दा बिजनेस किस तरह चल रहा है, किना दे पुत्र हैं, मैं लोगों को खबर देनी है। वो जोड़ा पिछले 2 साल तो विआह होया सी ना, उन्होंने घर अज पुत्र होया है। मैं लोगों को खबर देनी है, उन्होंने धी पुत्र का रिश्ता हो गया है। मैं लोगों को खबर देनी है, फलाने के घर अज ये होया है। ये सारा काम मैं किया, मैं लोगों के बूहे ते बैठा होया मन करके। मनु आदत है मैं तीर्था ते जाना नहीं जी, सिर्फ यही आदत नहीं है, मैं हमेशा बाहर ही रहता हाँ, अपने घर अंदर नहीं रहता। ता टिक सकता ही नहीं है। पढ़ते हैं असी कबीर मन पंखी भयो, कबीर मन पंखी भयो, उड़ उड़ देश जाए, उड़ उड़ देश जाए, कबीर मन पंखी भयो, कबीर मन पंखी भयो। जो जैसी संगत मेरे, जो जैसी संगत मेरे, सो दसो फल खाए, सो दसो फल खाए, सो दसो फल खाए, कबीर मन पंखी भयो, कबीर मन पंखी भयो, उड़ उड़ दिश जाए, उड़ उड़ दिश जाए, कबीर मन पंखी भयो, कबीर मन पंखी भयो। लो जी, मैं इंसान और मेरा मन पंछी बन गया। मेरा आवागमन हो गया। देखने में मैं इंसान लगता हूं, पर मैं पंछी बन गया, जिसके अंतर राज अभिमान, जो दूसरों को डोमिनेट करने वाली अवस्था, सो नरक पाती। लो जी, मैं उन्हें जींदिया ही नरक च पै गया। होवत स्वान, जींदिया जी मैं कुत्ता बन गया, देखने च मैं मनुख लगता। कबीर मन पंखी पयो, पंखी बर्ड, उड़ उड़ दह दिस जाए। दह दिस जाए का मतलब की होता है,
एक एक इंद्रे ज्ञानेंद्रे तो निकल के बाहर चला गया मेरा मन। मेरिया अखा कुछ देखना चाहदियां हन, ਕੰਨ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਠੀਕ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੈਰ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, 10 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਲਿਟਰਲੀ 10 ਨਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 10 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨੇਂਦਰੇ। ਵਰਨਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਹੈ, हर रोम श्वास लेंदा है, हर रोम एक छिद्र है, हर रोम चों मेरा मन बाहर चला जाता है। जिस शरीर दे अनेकां छिद्र होण, उस दे अनेकां द्वारे होंदे ने। उस शरीर नूं, भाव मेरे शरीर नूं द्वारका नगरी कहंदे ने। एक बाहर है, मेरे इस शरीर नूं द्वारका नगरी कहंदे ने। ਇਹਦੇ ਜਿਤਨੇ ਦੁਆਰੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਖੀ ਪੇ ਉੱਡ ਉੱਡ ਦੇ ਦਿਸੇ, ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪੰਛੀ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ, ਜੈਸਾ ਬੀਜ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਤੈਸੋ ਫਲ ਖਾਏ, ਵੈਸੇ ਵਾਲਾ ਫਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਅਸੀਂ ਫਲ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਲ ਖਾਦਾ, फलाने शराब पींदे हैं, हुण मैं शराब पीआंगा। मैं फल खादा, फलाणिया ने अश्लील कपड़े पाए हैं, मैं अश्लील कपड़े पावांगी। मैं फल खादा, बाकी बच्चे अपने मम्मी पापा का कहना नहीं मानते, मैं भी अपने मम्मी पापा का कहना नहीं मनांगा। बनाई जाओ जितने भी एग्जाम्पल बनाने। इस तरह असी फल खाते हाँ। सस पहले दिन तो अपने नूं दबा के रखना चाहती है, बेटे नूं कहती है, देख ये 1000 साल तो इन चल रहा है, तो वो मिठा ना बोली, नम्रता नाल डील ना करी, वरना सिर ते चढ़ जाएगी। बस मेरे मन ने फल खादा, मैं अपनी पत्नी नाल नम्रता प्यार मिठास ना डील नहीं करता, क्योंकि सिर ते चढ़ जाएगी। ये फल मैनू पसंद आया, मैं वैसी शख्सियत बन गया। ये मन जैसा सेम है तैसो होए। मन मेरे इस पंक्ति मुताबिक मन उड़ उड़ दह दिस जाए 10 दिशावां तो। 10 दिशावां बाहर नूं नहीं कहंदे ने, बाहर नहीं होंदियां 10 दिशावां। मेरे इंद्रे ज्ञानेंद्रे बाहर जाता है। मैनू इन्हां इंद्रे ज्ञानेंद्रियां नूं प्रॉपरली वर्तन दी जांच नहीं है। आई डोंट नो हाउ टू मेक बेस्ट यूज ऑफ ऑल दीज ऑर्गन्स। बेस्ट यूज नहीं आता ना। मैं इन अखां क्रोधित बना के, स्टेयर करके, घूर के किसी को देखना, उसका खून सुका देना। मैं इस जबान के नाल उच्चा बोलना, माड़े बोल बोलना, उसका खून चुप करा देना, उस गल्लां कढ़दा, टिट फॉर टैट करदा। इस तरीके दे नाल ये सारियां गल्लां मेरे ऑर्गनस करते ने। मैनू ऑर्गनस नूं वरतना नहीं आंदा। थोड़ा जिहा ट्विस्ट करते हैं। डॉक्टर ने डॉक्टरी पढ़ी, डायग्नोज करना जानता है, सर्जरी करना भी जानता है, पर इसका जिहड़ा मन डॉक्टर बनना चाहिए सी, जो नहीं बनया, इस सर्जरी करेगा इंटलैक्ट के नाल और किडनी बेच देगा। वैसे गॉड उन्हें डॉक्टरी पढ़ी है, मन डॉक्टर नहीं बनया, इंटलैक्ट डॉक्टर बन गया, भ्रूण हत्या कर दी। इंज उसनों डॉक्टरी नहीं वरतनी आई। मैनू तो मेरे अंग ही नहीं वरतने आते ने। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ अपने अंग वरतने नहीं आते ने। इन्हां अंगां तो मन बाहर चला जाता है। देही गावां जियो धर मैं तो बसे पंच किरसाना, नैनू नकटू श्रवणु रसपत इंद्री क्या ना माना। बाबा अब ना बसोए गाँव, अब ये घर ठीक नहीं रह सकता। यू विल बी अपसेट।
बाहर चला गया, बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे। पहला क्या, मन रे थिर रहो मत कत जाई जियो, किधरे ना जा, बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे, दुखी होएगा। कार अमृत कट माई जियो, तेरे अंदर रब जी वसते ने और वो जड़ी सुमत बख्शते ने, वो अमृत रूपी मत है। अमृत, मृत होंदा मरना, अमृत जिस मत नूं लैके मरदे नहीं हाँ। कार अमृत कट माही जियो, कार ही में अमृत भरपूर है, पर मैं मन दी सुनदा मन मुखा साध ना पाया। मैं अपनी मन मर्जी ते चलता हाँ। मन मर्जी की निशानी होती है, कोई किसी को कहे कि नम्रता और मिठास नाल बोलना चाहिए, वो कहे नहीं अपने नाल नहीं चलता, मिठा मिठा बोल के नम्रता नाल। मन की मर्जी है, क्योंकि मन ने दूसरों को बोरो कर लिया। निम्रता नहीं दिखानी, दूसरा सिर पे चढ़ जाएगा। प्यार से नहीं बोलना, दो की चार सुनानी है। मन रे थिरो मत कर जाई जियो, बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे, कार अमृत खट माही जियो। ये शब्द का रहा हुआ है। तो जे अंदर दे अमृत नूं नहीं समझिया, अमृत जे नहीं समझिया तो तू मृत होंदा है, मरदा है पल पल। असी पल पल मरदे हाँ, ये सानू पता नहीं है। आत्मक जन्म मरण, आत्मक जन्म मरण जिहड़ा पल पल असी देखने च इंसान लगते हैं। फर्ज को मेरी 70 80 90 100 साल उम्र है, मैं देखने च इंसान लग रहा हाँ, पर मैं दिन विच लखां करोड़ां वारी मरदा हाँ। वो जे मैं नहीं मरना तो मनु सतगुर दी मत वाला अमृत चाहिदा है। वो मैं लेना है। एक तो साडा पंथक सिस्टम है, असी खंडे की पौल सकते हैं साड़ी रहत मर्यादा अनुसार, वो तो असी लेना ही है, करना ही है। पर लैन तो पहला भी लैन तो बाद भी सारी उम्र मनु बाणी पढ़ पढ़ के, ये बाणी जो जियो जाना तिस अंतर रवै हर नामा, ये पढ़ पढ़ के मनु गुरबाणी अनुसार जिहड़ा मैं पल पल मनुखा दे व्यवहार करन वेले मरदा हाँ। मैं डेड बॉडी वाले एक्शंस करता हाँ, मैं मनुख रहिंदा ही नहीं। मेरे अंदरों विजडम रूपी चंगे ख्याल मैं उड़ा दिते। मेरे नाल बिहेव करने वाले लोग डरते हैं। पति तो पत्नी डरती है, बच्चे डरते हैं, मिसबिहेव होता है। इस तरह कई जगह पत्नियों को डरते हैं, है ना। बिहेवियर का गड़बड़ हो गया। गुरु पातशाह सब किछ जीवत को विहार, सब किछ जीवत को विहार, मात पिता भाई सुत बंधु, मात पिता भाई सुत बंधु, हर फूल ग्रह की सब किछ जीवत को विहार, सब किछ जीवत को तन ते प्राण होत जब न्यारे, तन ते प्राण होत जब न्यारे, एक एक पुकार, एक एक पुकार, आग घड़ी को न राखे, कर दे देत निकार, कर
तू जींदा है ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਹੀ ਜਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਬੀਟ तेरी चलती है, डॉक्टर कहता तेरा बीपी भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, ये जिंदा है, लेकिन तू मोया वाले एक्शनस करता है लोगों नाल, तेरा व्यवहार डेड बॉडी वाला है, व्यवहार डेड बॉडी वाला ना उन्होंने कहते हैं नर उमर है नर काम ना आवे, तो देखने च जिंदा लगता है पर किसी कम जोगा नहीं, पीपल कैन नॉट टॉक टू यू, कैन नॉट सिट नेक्स्ट टू यू, तेरा बिहेवियर इतना गलत है क्योंकि तू मन करके ऑर्गन्स तो बाहर गया और तू मर गया, मिसयूज करना शुरू कर दिता अपने अंगा का, एक अंग वरतने नहीं आते, मर गया, नर उमर है नर काम ना आवे, ये शरीरक डेथ तो बाद वाले दा शब्द नहीं है, जे मनुख जींदे जी इंसानियत वालों मर जाए किसे कम जोगा नहीं रहता है, पशु मरे जे दे अंदरों पशुता मर जाए, मिसबिहेव 10 का सवार है, फिर अपने सारे इंद्रे ज्ञानेंद्रे दे 10 काज सवारता है, इन्हों सवारता है अते दुनिया दे काम भी आता है, वो दुनिया के भले के काम वास्ते आता है, वरना वो घर वाले भी वो व्यवहार कर नहीं पाते ने, क्यों तन ते प्राण होत जब रहे, प्राण पावन गुरु नूं कहते हैं, पावन गुरु पानी पीता, प्राण इज विजडम, जिवें किसी दी बॉडी नूं श्वास ना आ रहे होण उसनूं ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया जाता है, इस तरह मेरे मन नूं ठीक तरीके श्वास नहीं आते ने, चंगे श्वास नहीं आते ने, इसनूं सतगुर दी ऑक्सीजन देनी है, सतगुर दी पवन देनी है, उन्होंने कहते हैं तन ते प्राण होत जब न्यारे, जे वो नहीं दिती तन नूं सतगुर दी मत दे प्राण पवन ऑक्सीजन जे नहीं दिती, तीरथ प्रेत पुकार तू जींदे जी भूत प्रेत है, लोकी किसी दी शरीरक डेथ तो बाद 100 काट तथा कथित आत्मा निकल जाती है, ऊपर भटकती रहती है, फिर मम्मी पापा ढूंढती रहती है, अगर उसको मम्मी पापा चंगे नहीं मिलते हैं तो वो किसी के साथ चिपट जाती है, उसको पागल बना देती है, उसको वैसे करती है, उसको भूत प्रेत बोलते हैं, गुरमत नहीं मनती है टकोसले, खंडे की पौल छकी है और भूत प्रेत मनते फिरते हैं, भूता प्रेता तो डरते हैं, तांत्रिक दे बूहे ते जाने हैं, धागे तवीत बनते हैं, शमशान घाट के कोलों लंघण तो डरने हैं, गुरमत कहती है जय कर साधना सेवी है, हर की सेवा नाए ते कर मरगट सारखे भूत वसै तिन माए, मेरे घर अंदर मैं भूता प्रेता वाला बिहेव करता लोगों नाल, मेरे रिश्तेदारों नाल, मेरे परिवार नाल, जदों मैं मिसबिहेव करा ना और मिसबिहेव करदियां मेरी पत्नी अंदर सोच रही होए ये तो बला चमड़ गई है, गलत जगह विआह हो गया है, लेकिन जदों मैं 9 बजे ऑफिस जावां तो बच्चियां नूं कवे शुक्र है बला टली, शुक्र है तेरा पापा गया, इहदा मतलब वो एक पल भी मेरे नाल कट नहीं सकती है, आध घड़ी कोल रख है अंदर हिरदे विच नहीं रख सकते ने, बिकॉज यू मिसबिहेव्ड, तू जींदे वाला व्यवहार किया ही नहीं, जींदे वाला व्यवहार तेन आता ही नहीं, क्योंकि तेरे अंदरों नरू मर चुका है, इंसानियत मर चुकी है, वो इंसानियत ना मरिया करे, अमृत सतगुर दी मत ले लेना, सतगुर दी मत एक खजाना है, एक जल निध है, इस दे वास्ते तू आया है, द पर्पज ऑफ योर लाइफ, जिस जल निध कारण तुम जग आए, पहला पदा तू ये जल निध निध खजाना, लोकी 9 निधा 18 सिद्धा अमीरी नूं समझते ने, दुनियावी कामयाबी नूं समझते ने, ए 9 निधा इन्हां दे इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय दी निध खजाने नूं समझना, जिस जल निध कारण तू जगाए
उस जल निधि ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਪਾਈ ਜਿਉ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਲੈ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਏਗਾ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਏਗਾ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਸਟੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ, ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ। गुरु समझाएगा ये नेत्रों मेरे हर तुम्हें जोत तरी, हर भी नवर न देखो कोई। कन्ना नु समझाएगा ये श्रवणों मेरे हो, साचे सुनन नु पुटाए, साचे सुनन नु पुटाए। शरीर लाए सुनो सत बनी, जित सुनी मन तो न रहा हुआ, रसना रस मानी, देख तू चेंज हो जाएगा। साथ संगत जी विसाखी है, विसाखी च असी खंडे की पौल छकन बारे गल करते हाँ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਛਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੈ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਛਿਪਾਈ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਪੁਰ ਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਲ ਪਲ ਮਰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਮਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਸ ਆਤਮਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਇਟਸ ਨॉट डिफिकल्ट। ਇਹ ਕੋਈ ਗਿਆਨਵਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੂੰ ਜੋ ਸੋਚ ਕੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਰਤਾ ਹੈ ਨਾ, वो ना मरे। कोई धर्म की तो गल ही नहीं हुई। शायर कहता है खंजर की क्या मजाल जो तुझे घायल कर सके, ये तेरे अपने ही है ख्याल जो तू घायल हुए जा रहा है। अपने ख्यालों नाल ही दिन रात मरदा रहना है, अपने ख्यालों नाल ही अपने आप को इन्फीरियरिटी कॉम्पलैक्स च पाई रखना, हीन भावना च पाई रखना है, अपने आप को इनवैलिडेट करता रहना है। क्यों? क्योंकि तू कंपीटीशन की रेस है। बच्चे दे नंबर लैन तो इलावा, कारां कंपेयर करन तो इलावा, सैलफोन किहड़े ब्रांड दा है, इन्हां सारियां गल्लां तो इलावा, फलाणियां ने विआह ते रोटी किस जगह खवाई सी, इन्हां सारियां गल्लां दे चक्करां च तू रहना है, पल पल मरदा है। अपने इन्हें इंद्रिय ज्ञान इंद्रिया का ना खजाना तू सतगुरु को लेना है। जिस जल निध कारण तू जगाए, सो अमृत गुर पाही जियो। हुण समझा रहे ने, देख तू मरदा किस तरह है, पेक करके। अंदरों तू हो रहा है कुछ, बाहरों दिखावा तू कुछ होर करता है। बाहरों धर्मी दिखावा ना करया कर। एक पॉइंट कुदरती आ गया, टॉपिक चल रहा है, इस करके कई लोगों को भुलेखा है, वो समझते हैं खंडे की पौल छा के 5 ककार पाना पेक है, लोग की कहते हैं, लेकिन वो पेक नहीं है। वो मैनू एक जीवन जात सिखाने वास्ते वो 5 ककार सजाते हैं, पर मैं वो पा लवा और वो वाला जीवन ना जीवा तो लोगों की जबान से वो पेक बन जाता है, लोगों के पाने। इस करके पेक मैनू नहीं करना। हुण मैनू कहते ने छोड़ो वेस पेक चतराई, मन की चंचलताई, मन की चतराई की है। मन कहता मैं सतगुर की गल नहीं मननी, मेरी मन मर्जी करनी है, उन्होंने चतराई कहते हैं। छोड़ो वेस, बाहरला दिखावा छोड़ दे, अंदरों तो कुछ हो रहा है। तू बाहरों धर्मी दिखाता है, सांप कुंच छूटता है, बिख नहीं छाटता है। उस शब्द के रहावच कहते ने काहे को कीजिए ध्यान जपन्ना। बाहर से ये क्या दिखा रहा है कि मैंने बड़ा ध्यान लगाया हुआ है, मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, माला फेर रहा हूँ। काहे को कीजिए ध्यान जपन्ना, जब ते शुद्ध नहीं मन अपना, तेरा मन तो शुद्ध नहीं है। छोड़ो वेस पेक चतराई, दुबदा है, दिस इज ड्युअलिटी। तो दुबदा विच है, दुबदा ये फल नहीं जियो, मन रे थिर रहो, मत कर जाई जियो। तीर्थां ते कौन जाते ने? मैं जाना, लोकां दे आखे लोकी जाते हैं, इस करके मैं तीर्थां ते जाता। हुण गुरु पातशाह कहते ने नामन चले तीर्थी, मन खोटे तन छोड़। ਇਹਦਾ मतलब एक कसौटी होगी गुरु ग्रंथ साहिब की, जो तीर्थ पे नहाने जाता है उसका मन खोटा है और तन चोर है। कहने की लोड़ नहीं किसी को, लड़ाई हो जाएगी। मैं सोचना जे मेरा मन खोटा है और मैं चोर हाँ, मैं तीर्थ पे जा रहा हाँ,
मैं जे मन खोटा और तन चोर ठीक कर लवां मनु तीरथ ते जाण दी लोड़ नहीं। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੀਰਥ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੀਰਥ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੇਸ ਭੇਖ ਚਤਰਾਈ ਛੋੜ ਦਿਆਂ, अपना ये पखंड छोड़ दिया, तो रब जी हैं मन निर्मल हो गया। नावण चले तीर्थी मन खोटे तंचोर, एक पौलथी नात्या दोए पाछड़ियस होर, मैल होर चढ़ गई। मैं लोगों को दसांगा मैं तीरथ ते गया सी, जे नहीं पूछोगे तो मैं पिन्नी प्रसाद लैके आवांगा, पंजीरी देंगा। लो तुसी पूछो, मैं एक बोतल एक पानी भर के ले आवांगा और दसांगा अमृत है, लवो हाथ करो, किथों? मैं अमृत लैके आया। ताकि मैनू धर्मी समझो, छोड़ो वेस भेख चतराई। नावण चले तीर्थी मन खोटे तंचोर, एक पौलथी नात्या दोए पाछड़े सोर। बाहर धोती तुमड़ी अंदर विस निकोर, अंदर ते तू जहर घोलदा रहना है, बाहर की नाण गया। बाहर धोती तुमड़ी अंदर विस निकोर। हुण गुरु पातशाह कहंदे ने साध भले अणनात्या, नो नीड टू गो टू तीरथ एंड बेद ओवर देयर। साध भले अणनात्या। फिर कौन नहाते हैं, कौन वहां जाते रहते हैं तीरथ पे? चोर से चोरा चोर, चोर जाते हैं। इसका मतलब जो इंसान चोर नहीं बनना चाहता वो इंसान तीर्थां ते जाना छड़ देगा। मन रे थिर रहो, मत कर जाई जो बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे। दुविधा ये फल नहीं जियो, ये फल प्राप्त नहीं होएगा। बल्कि तू तीरथ ते जान दे बावजूद भी जदों तेरे नेड़े कोई आएगा ना, तेरे मन दे ख्याल, तेरे मन दे सुभाव दी बदबू आएगी। तू जिन्ना मर्जी दिखावे दा अपना कर लै कि मैं धर्मी हाँ। उन्होंने गुरु पातशाह कहंदे ने जैसी लहसुन की खान, जैसी लहसुन, जैसी लहसुन की खान, जैसी लहसुन की खान। साकत ऐसा है, साकत ऐसा है, साकत ऐसा है, साकत ऐसा है, साकत ऐसा है। कैसा? जैसी लहसुन की खान, जैसी लहसुन की खान। कोने बैठे खाइए, कोने बैठे खाइए, प्रगट होए निदान, प्रगट होए निदान। साकत ऐसा है, साकत ऐसा है, साकत ऐसा है। जैसी लहसुन की खान, जैसी लहसुन की खान। गुरु साहब एग्जाम्पल भी की दिंदे हैं, कहते लसन खाओ ना, छुप के खाओ, जिवें मर्जी खाओ, जिहदे कोल जाओ स्मैल आ ही जाती है। तुसीं लसन खाता है? इस तरह तू तीरथ ते ना आवें, तू जिस तरह मर्जी माला फेर लवें, भोरे च बह के फेर लवें, जिन्ना मर्जी मैडिटेशन कर ले, जिन्ना मर्जी धार्मिक स्थान ते 40 दिन चला जाए, 40 साल चला जाए, 40 महीने चला जाए, 40 जन्म चला जाए, पर तेरे चो विकारां दी, मंदे ख्यालां दी, बैड हैबिट्स दी, दूसरे नाल मिसबिहेव दी बदबू आती है। साकत है, वो डेफिनेशन दे रहे हैं। साकत कैसा होता है? साकत ऐसा है जैसी लहसुन की खान। धर्म का पाखंड क्या करता है? धर्म का बुर्का क्या उड़ता है? धर्म का बाहर दिखावा क्या करता है? धर्म दिखाने के लिए माला क्या फेरता है? धर्मी बनने के लिए बाहर बाहर से मोमो ठगना क्या बनता है? क्या धार्मिक भेख बनाई फिरना है? अगले पदे च कहते ने तेरा मन थिर नहीं है। मन ना थिर ना होवे ना, असी अवगुण करते हैं। जे मेरे अंदर कोई भी डेफिशिएंसीज, शॉर्ट कमिंग्स, फ्लॉज हैं,
मैं कोई भी अवगुण जे करदा हाँ मानो मेरा मन टिक नहीं सकता रहा मुताबक। इस करके मैनू कहते ने अपने अंदर ना वध तो वध अवगुण कढ़िया कर, अवगुण छोड़, गुणा को ताहू। वरना बार बार अवगुण करके तू पछतांदा रहना। आज किसी ने पूछा वीर जी मैं थोड़े प्रोग्राम सुन सुन के सीख लिया कि कौड़ा नहीं बोलना, पर फिर भी वेले सिर स्लिप हो जाते हैं, कौड़े बोल भूल जाते ने ना। अगला इतना उकसा देंदा, एक्सप्लॉइट कर देंदा, फिर की करिए वीर जी, उस वेले फेल हो जाते। इम्तिहान वेले क्यों फेल हो जाते हैं, इस सवाल से। एक कहता वीर जी तुसी कहते हो कितनियां टेपां विच बाणी अनुसार क्रोध नहीं करना चाहिए, बड़ी गल समझ आती है, पर वेले सिर क्रोध हो जाता है। दरअसल अपने आप को एक नोबल कॉज वास्ते, एक हायर कॉज वास्ते अपने आप को असाइन ही नहीं किया, इंटरेस्ट ही नहीं किया अपने आप को, दैट यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस हायर जॉब, यू आर फॉर हायर कॉज। नहीं किया ना। साडे घर दियां बीबियां वो है जी मैं कपड़े धोने होंगे ने, है जी मैं फिर रोटी पकानी होंगी है, फिर माई आ जाती है, फिर सफाइयां करानी होंगी, फिर बच्चे स्कूल वाले वापस आ जाते हैं, घर वाले कामां ते गए ने, बच्चे स्कूल आ जाते, बच्चे का काम कराना होंगे, रोटी पकानी होंगी है, फिर उन्होंने पढ़ाना होंगे, फिर वह होमवर्क कराना होंगे, फिर उन्होंने स्विमिंग क्लास ले जाना होंगे, फिर वह ये होंगे वो होंगे, घर करा के जी शाम का वेला हो जाता है। दसो जी कदों करिए। यू आर नॉट मेंट फॉर ओनली दीज पर्पजेस, दिस इज़ नॉट द पर्पज ऑफ योर लाइफ। फॉर दीज वर्कस हाउस चोर्स के सारे काम करदिया होया तेनू समझना है कि आई एम मेंट फॉर हायर कॉज। अपने आप को हायर कॉज वास्ते असाइन ते करिए, दैट आई एम नॉट ओनली मेंट फॉर दीज स्मॉल पैटी थिंग्स। ये तो मैनू करनिया ही करनिया ने, लेकिन इन्हां चों करदिया करदिया हसंदिया खिलंदिया पहनंदिया खावंदिया विच होवे मुकत मैं इन्हां चों हायर कॉज वास्ते किवें जीना है। जिसनों अपने आप को हायर कॉज असाइन करना आ जाता है ना, वो सामने ना जदों कोई कौड़ा बोल बोलता है ना, वो कहता चल माफ किया बिकॉज आई एम मेंट फॉर हायर कॉज। किसी ते क्रोध आता है, किसी की गलती नजर आती है, चल यार छोड़ यार, आई एम मेंट फॉर हायर कॉज। मैं छोटिया छोटिया गलियां, छोटे छोटे खूच, छोटिया छोटिया नालियां विच गलिए चिक्कड़ दूर कर, ये चिक्कड़ विच डिगना नहीं है। आई एम मेंट फॉर हायर कॉज। हायर कॉज जे आपने अपनों दिता ही नहीं है तो घर वाले मनणगे नहीं, पैशनेटली देना पेगा। साडी ना बाहर अचानक एक पॉइंट आ गया, साडी पुस्तक आई है बाहर सचियारा किवें बनी है। असी जो जपजी साहब पढ़ रहे सी तो जपजी साहब विच आया मन्ने की गत कही ना जाए, जिसने सतगुरु की मत नूं सुनिया, सुने दिया 4 पौड़ियां उस वक्त मन्ने दिया आईयां। जिसने सच नूं सुनिया उन्हें मन्निया। मन जिहड़ा मन लैंदा उहदी गत कही नहीं जा सकती, पर उहदे नाल की वापरदी है, उन्होंने जदों सच समझ आता है। जे को कहे पिछे पछताए तो असी एक एक्सरसाइज की। फर्ज करो मेरे पिता जी पाकिस्तान तो उजड़ के आए, मैं किसी ने दसा मेरे पापा जी पाकिस्तान बड़े अमीर सन, लेकिन जदों इत्थे आए खाली हाथ आए, उन्होंने बड़िया मेहनत कीतियां, फिर खड़े हो गए। मेरे पापा जी सुंदर पग बनते हैं, मेरे पापा जी की नक बड़ी सोहनी है, मेरे पापा जी मिठा बोलते हैं, मेरे पापा जी बरादरी कामयाब नहीं। मैं 4-5 गुण बोले, इस तो अगे मैनूं पता ही नहीं। मेरी माँ ने कहा तेरे पापा जी होर भी गुण हैं, मेरी दादी ने समझाया तेरे पापा जी होर भी गुण हैं। तो जे मैं 4 या 5 बयान किए ने पापा जी के गुण, पर उन्होंने होर भी गुण हैं, उनकी मैनू पछताना पेगा। विचारो सोचो। इंज रब बारे, रब जी बेअंत हैं, रब जी अंदर बेअंत गुण हैं। मैं 4-5 बोले रब जी दयालु है, कृपालु है, मिठा बोलते हैं, दाता देंदे ने, 4-5 बोले। तो जे 4-5 तो ज़्यादा ने, रब जी बेअंत ने, इनफिनिट क्वालिटीज़ वाले गॉड है, तो हुण मैनू पछताना पेगा। पछताना तो रिग्रैट होंदा, पछताना तो गिल्ट होंदा, पछताना तो होंदा कोई गलत काम करके पछताना। मैं तो रब जी की गल ही कर रहा सा, इहदे पछताण की गल आ गई? कोई करतूत थोड़ी ना खोली है, रब जी की गल ही कर रहा ना। जे को कहे उन्होंने सच का मार्ग जो पता लगता है, अंदरों जो सुनाया जाता है, पीछे आफ्टर दैट, पीछे मीन्स उसके बाद
पच पच हुंदा है। छच्छे नूं औंकड़ और इत्थे असीं उहनूं ब्रेक करांगे समझण वास्ते। जी को कहे पिछे पच ताए, वो ताए हुंदा है तप के, पैशन नाल, पैशनेटली, बर्निंग डिजायर दे नाल। ताए तप के सच दे मार्ग ते बर्निंग डिजायर दे नाल पैशनेटली सिंसीयरली टुरना गुरमत दा तप है। एक टंग ते खड़े होके चौकड़ा मार के बैठ के या किसी जगह माला फेरना तप नहीं है गुरमत दा। गुरमत दा तप है मैं सच दे मार्ग ते पैशनेटली सिंसीयरली टुरना चाहना हाँ। जो तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर तर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तली जाए, सिर दी जाए, कार ना की जाए। मैं इस मार्ग को छड़ना नहीं चाहता। ग्रेट मार्ग है, बेस्ट है। जी को कहे पीछे पच, पच मीन्स पीछे आफ्टर दैट, उस तो बाद पच फॉलो करता है पैशन दे नाल सच नूं। जदों सच पता लग जाए, सच पता लग जाए ना कि मेरे अंदर यह अवगुण है, मैं अवगुण छड्डना है। मैं क्रोध करदा मेरा सिर दर्द होता है। मैं जदों उच्चा बोलदा गालां कढ़दा 5-6 घंटे मेरा बीपी हाई रहता है, मेरी त्यूड़ी चढ़ी रहती है। मैनूं उस बंदे नाल गल करन ते दिल नहीं करता। मैं अपने आप को कॉर्नर कर लैंदा, मैं डिप्रैशन में चला जाता, मैं अपने कमरे अंदर बंद हो जाता। लीव मी अलोन कहता हाँ, छित्था पैंदा टेबल ते मुक्का मारदा हाँ। बहुत मैं डिस्टर्ब हो जाता। उस वेले मैं स्कीज़ोफ्रेनिक हो जाता हाँ। क्यों? मैनूं अपने अवगुण दा पता नहीं सी। जो तो मैं बहुत क्रोध नाल गुस्से नाल बोलदा, मैं कंबण लग पैंदा, मेरी जुबान थिड़क जाती है। बस ये अपसेट अपना नोट करना कि इंज मैं मरदा हाँ पल पल। और सतगुर की गल सुन के इस अपसेट तो छुट जाना। अवगुण छोड़, गुणा को ताबू, नोबल कॉज वास्ते जीना। जे गुणा वास्ते नहीं ना जी रहे हाँ, फिर तो साढ़े और पशु विच कोई फर्क नहीं है। पशु दे गुण देखो, पशु मिले चंगाइयां खड़ खावे अमृत दे, घाह पत्ते खाते ने, दूध देंदे ने, नाम भी उन्हें आदमी त्रिक जीवन कर्म करें। वाह जी वाह, अखवाना तू अपने आप को बंदा है, तू तो पशु तो भी गया गुजरे है। पशु पत्ते खा के दुध तो देता है ना कम से कम। तू सब कुछ खा पी के हजम कर जाता है तो शैतानियत करता है, आप मरदा रहता है, दूजिया भी मारदा रहना है, दूजिया का खून चूसता रहना है। तू सवाल बड़े करता है वेजिटेरियन होवा कि नॉन वेजिटेरियन होवा, पर तेन ये गल समझ ही नहीं आती। जी जी मेरा
सारा शरीर अपवित्र हो गया, क्योंकि मेरा मन रूपी जामा, मन रूपी कपड़ा, मन रूपी पहरन, मेरा फैशन मन उत्ते कीता होया सारा अपवित्र हो गया। क्यों? क्योंकि जे कपड़े नूं खून लग जाए वो अपवित्र कहलाता है, तो मेरा मन लोगों का खून चूसता है। जो रत पीवे मानसा, लोगों का खून चूसना है। लोगों का खून चूसन नूं गुरु नानक पातशाह कहते ने हक पराया नानका, उस सुअर उस गाय गुरपीर हामा ता भरे जा मुर्दार ना खाए। तो लोगों का खून चूसन वाला मुर्दार खाना है, पराया हक खाना है जो तू दाज लेना है। बड़ी पॉलिश्ड लैंग्वेज कहते हैं, सानू तो नहीं चाहिए अपनी धी वास्ते ही तुसीं देना, दे दिओ कार, पर जो कार छोटी मोटी फड़ान तो फिर बरादरी सानू की कहणगे जी। जो कुछ देना अपनी धी नूं ही ते देना है, इनडायरैक्टली दाज और हक पराया असीं धी नूं ही दाज दे नां हेठां कन्यादान करदे हां। खालसा दाज ना देंदा है ना लैंदा है। एक खंडे की पौल छकण तो बाद सानू वड्डी जीवन जाच सारी दुनिया के सामने डिस्प्ले करनी है, प्रैक्टिकल। दैट शुड बी द रियलिटी। जात पात खत्म और खालसा दाज नहीं लैंदा। दिस रियलिटी मेक्स सेंस, अदरवाइज कहण नाल नहीं कुछ बनेगा। जो रत पीवे मानसा, जदों मैं किसी नूं क्रोध करदा हाँ और अखां गुस्से नाल उहनूं कढदा दा खून सुका दिंदा, मानो मैं पी गया। भावें मैं फोन ते किसी नूं दूरों डांटा, खून सुका दिता, अगला पीला पै गया। 10 बंदियां दे सामने उसनूं जलील किया, उसका खून चूस गए। ये गल्लां कौन करेगा? कहना बड़ा आसान है मूंगी दाल खाया करो, कहना बड़ा आसान है साग खाया करो, कहना बड़ा आसान है मैं मुर्गी खाना हाँ या नहीं खाना हाँ। ये सारी गल्लां बहुत आसान है करनियां, लेकिन मैं पराया हक खांदा कि नहीं खांदा ये गल विचारन की लोड़ ही नहीं सानू। पराया हक खाण नाल ना सारा ब्लड कंटैमीनेटेड हो जाता है। बाहरला ब्लड खराब हो जाए तो डायलिसिस नाल ठीक हो सकता है, लेकिन ए वाला तेरा कंटैमीनेटेड ब्लड जो जोरों से नामनी आवे वारों वार, झूठे झूठा मुख वसे नित नित होए ख्वार, तेरा खून खराब हो गया है। तेनू लोभ रत चमड़ गई है, तेरी जीभ नू लोभ दा खून तो चूसना है। जो रत पीवे मानसा, तिन क्यों निर्मल चीत। हुण तेरा चित निर्मल किवें हो सकता है? चित नूं निर्मल करने वास्ते अवगुण छड्डने पैणगे। मन टिक गया। जेड़े सवाल करते हैं उन्हां चों एक माता जी का सवाल आया, बेटा मैं टीवी ते तेरा प्रोग्राम देखदी हाँ लेकिन पाठ करदियां गुटका छुट जाता है, की करिए? मैं कहा माता जी तुसीं पता है की करिया करो, जिस तरह सोने नूं कुठाली विच पा के थल्ले अग बालदे ने तो सोने चों इंप्योरिटीज़ जिवें सड़ जांदियां ना, सोना जो तक नहीं इंप्योरिटीज़ सड़ियां सी भुड़कदा रहिंदा है इंज इंज, लेकिन जो इंप्योरिटी सड़ जांदियां सोना टिक जाता है, इस तरह बैठ जाता है बेस ते। इंज माता जी जो मेरे समेत असी सारे अवगुण करते हैं ना, अपने अवगुण जे छट दईए तो मन टिक किते गया सोने प्योर वांगू। मन कूड़ियार है, कूड़ा है। कल तो माता जी जपजी साहब करने लिए अपना पाव बनाना इस तरह, आई रियली वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस कूड दीज इम्प्योरिटीज। अवगुण छोड़ गुणा को तावो, तो दूजे दिन तून पढ़ांगे क्यों सचियारा क्यों सचियारा you
सचियारा होइए केवल सचियारा केवल सचियारा केवल सचियारा अवगुण छड्डदे जाइए सचियार बनते जाते। हाँ मैं इत्थों बैठ के बोल रहा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सचियार हो गया। हाँ बाणी समझा रही है जो जो अवगुण छड्डो त्यों त्यों वी आर हेडिंग टूवर्ड्स सचियार, वननेस विद गॉड। अवगुण छोड़ गुणा को ताओ कर अवगुण पछताई जियो। तेनों समझ ही नहीं आती इन्होंने दो चोड़ किहड़ी चीज़ ठीक है। सार अपसर की सार न जाने फिर कीच बुढ़ाई जियो, फिर इस चिक्कड़ च डिगता रहता है। अवगुण समझदा भी है पर अवगुण छड्डदा भी नहीं है। यू हैव टू एफोर्ड, यू हैव टू गेट रिड ऑफ दैट, तां सचियारे बनते। अंतर मैल लोभ वो झूठे बाहर ना वो काही जियो। अंदर तेरे मैल है बाहर की नंद है, मन रे थिरो मत कर जाए जियो। अंतर मैल लोभ वो झूठे बाहर ना वो काही जियो। निर्मल नाम जपो सद गुरमुख अंतर की गत ताही जियो। अंतर की गत का मतलब की है मन साफ कर लिया, मन धो लिया, मन का इशनान कर लिया। अंतर्गत तीरथ मल नाओ, बाहरले तीरथ ते नहीं नहाना, सतगुर दी मत ते तीरथ ते अंदर नहाना है, बाहर तो किधरे नहीं जाना। निर्मल नाम जपो सत गुरमुख अंतर की गत ताही जियो। सतगुर दी मत ले लै तू मल तो रहत हो जावें, निर्मल हो जावे। निर्मल मैल तो रहत हो जान वाली अकल सतगुर जी कोलों लै। निर्मल नाम जपो सतगुरमुख, जदों तेरी मैल मुक जाती है तो हमेशा तू रब जी नू याद रखने वाली अवस्था च आ जाता है। रब जी विसरते नहीं हैं। जिन्हां ना विसरे नाम से किनेहिया वो कैसे होते हैं जिनको भगवान विसरता नहीं है। भेद न जाड़ो मोल साई जे आओ, रब जैसे गुण जींदे ने। रब्बी गुण जे छड़ दो तब मानो रब जी विसर गए। तित सरवरड़ा पहले निवासा पानी पावती ने किया, पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तै डूबले। मन एक न चेतस मूढ़ना, हर बिसरत। अगर भगवान को भुलाया ना उसकी क्या निशानी है? हर बिसरत। तेरे गुण गलिया, रब्बी गुण छड़ दिते मानो रब विसर गया। पर हर लोभ निंदा कूड़ त्यागो, ए लोभ निंदा और कूड़ छड़ दे। सच गुर बचनी फल पाही जियो, सच दा फल सतगुर दे बचन ले ले। लोकी समझते ने मैं 40 दिन पाठ किया मैनू फल मिलिया, मेरे घर पुत्र होएगा, मैनू फल मिलिया मैनू कार मिलेगी, मैनू फल मिलिया मैनू जॉब मिल जाएगी। इसकी गल नहीं चल रही। सतगुर दी मत दा बचन ले लेना और वैसे बन जाना। गुर का बचन बसै जी नाले वाला जीवन जीना असली फल है। जो पावै त्यों राखो हर जियो, फिर तेनू रब्बी रज़ा अनुसार जीना आ जाएगा। जो पावै त्यों राखो हर जियो, जन नानक शब्द सलाही जियो। मनु ऐसी वाली मत दियो जिदे नाल तुहाडे चंगे गुणों का सलाह मशवरा मैनू मिलता रहे और मैं वैसा जीवन जींदा रहां। सारे शब्द की विचार करन तो बाद मैं सांझ करना चाहता हाँ कि विचारा करदियाँ अनेका भुल्लां गलतियां हो गई होणगियां, उन्हां वास्ते मैं खिमत जाचक हाँ। पर यह सांझ करना चाहता हाँ कि गुरुद्वारे जाना माड़ी गल नहीं है, लेकिन मैं जावां और मेरा जीवन किरदार वैसा ना बने तो लोकां दे भाणे माड़ी हो जाती है। गुरुद्वारा माड़ नहीं सिखांदा, पाठ करना चाहिए है, अमृत वेले उठना चाहिए है। पर मैं अमृत वेले उठा और पाठ भी करा
ਪਰ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੈਸਾ ਨਾ ਬਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜੀਵਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਅਪਰੋਚ ਰੋਡ ਹੈ ਟੂਵਰਡਸ ਸੱਚ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋਣ ਦੀ, ਪਲ ਪਲ ਮਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ।